CBSE Mathematics Class 11th, Chapter 2, Miscellaneous Exercise, question number 1 to 6. Let us do the question number 1 first. The relation F is defined by fx, that is x square, 0 is less than or equal to x and x is less than or equal to 3. In the second part, that is 3x, fx is equal to 3x. In that case, our interval is 3 is less than or equal to x and x is less than or equal to 10. Now, the relation g is defined by gx, that is x square. In that case, the interval is 0 is less than or equal to x and x is less than or equal to 2. In the second part, the 3x means gx is equal to 3x. In that case, the interval is 2 is less than or equal to x and x is less than or equal to 10. We have to show that function f is a function, f is a function and g is not a function. हमें यहाँ पर शो करना है कि ऊपर वाला जो fx है वो तो फंक्शन है, gx जो है it is not a function. Now solution is like this: fx is equal to x square, the interval is 0 is less than or equal to x and x is less than or equal to 3, and second part of the first is that is 3x, fx is equal to 3x, so 3 is less than or equal to x and x is less than or equal to 10. Now there is two parts, so the part 1 is here. When fx is equal to, see fx is equal to x square, जब fx जो x स्क्वायर के बराबर होगा उस समय हमारी जो वैल्यूज़ होगी, देखिए कोई भी सब्स्टिट्यूट कीजिए, 0 से लेकर के 3 के तक, 0 से लेकर 3 तक के नंबर को हमने देखिए इधर x डोमेन लिख दिया 0 1 2 3. अब सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू मीन्स 0 का स्क्वायर करोगे 0 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा. मीन्स 0 का इमेज 0, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9. देखिए यहाँ पर भी पैरेलल इंडिकेटर है, पैरेलल लाइन्स हैं देखिए, और यूनिक मीन्स 0 has got only one image, that is 0, 1 has got one image, that is 1, 2 has got 4, 3 has got image 9. So every element of the x means domain has got a unique image. So that is a range, this is a range and this is a domain. Now, in the second part, you see when fx is equal to 3x, you see fx is equal to 3x, उस समय हमारी लिमिट क्या है, इंटरवल क्या है देखिए, फ्रॉम 3 to 10. चलिए अब 3 रखा हमने, 3 वैल्यू रखी, 3 कहाँ पर रखेंगे हम, यहाँ पर 3x. तो fx is equal to 3x, x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो क्या आएगा 9, 4 रखेंगे तो 12 मीन्स 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30. In this case also, if you see that every element of the x has got a unique image in y,
means 3 has got 9, 4 has got the 12, 5, 15, 6, means everyone. These are the parallel relation, you can say. So here I am giving a little bit clues that parallel and convergent trees indicate towards the function. So every element of the domain X has got a unique image. Hence it is a function, means fx is a function. Now the second part, gx is equal to x square, 0 is less than or equal to x and x is less than or equal to 2. When gx is equal to 3x, at that time the interval is 2 is less than or equal to x and x is less than or equal to 10. When gx is equal to x square, if you put or substitute the value, put x is equal to 2, at that time it will be x square is equal to 4. When gx is equal to 3x, at that time if you just put x is equal to 2, you will get gx is equal to 3 into 2, that is 6. So for 2, we are getting two images, that is 4 and 6. Means 2 has got 4 and 6 as an image. It means that x has got two images, means it has got no unique image. केवल एक अकेला इमेज इसका नहीं है, दो है, मीन्स डाइवर्जेंट है. यहाँ पर डाइवर्जेंट है. अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, बनाया है एक्स वाई का करके, इसी का एक्स डोमेन है और वाई इसका रेंज है. देखते हैं जरा. 0 to 1, 0 to 0, 1 to 1, 2 का देखिए 4 and 6 आ रहा है. शो किया हुआ इधर देखिए 4 और 6. सो एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स डोमेन हैज नॉट यूनिक इमेज. इन दैट केस एवरी एलिमेंट मीन्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया देयर इज एलिमेंट 2 विच हैज गॉट 2 images. इट मीन्स इट हैज गॉट नो यूनिक इमेज. अब देखिए यहाँ पर 2 को मैं डाइवर्जेंट रेज ड्रॉ किया है, 4 and 6. सो डाइवर्जेंट इमेज implies that not a function. Divergent image implies not a function or deny function. You see, divergent and deny. If you want to remember it, divergent image deny the function. Now proceed to the question number 2. If fx is equal to x square, find f 1.1 function f 1.1 minus f1 whole upon 1.1 minus 1. अब देखिए डिनोमिनेटर में यदि हम 1.1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.1. और यहाँ पर फंक्शन 1.1 का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमने 1.1 का स्क्वायर कर दिया. यहाँ पर लिखा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0.1. तो 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1.21. अब उसमें से 1 माइनस किया तो बचेगा क्या हमारे पास? 0.21 अपॉन 0.1. अब देखिए 1 डेसिमल ऊपर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का हटा दीजिए तो हमारे को मिलेगा क्या? 2.1. एंड दिस इज द आंसर. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अभी आप देखिए डिनोमिनेटर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1,
ये किसका स्क्वायर है? देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर को भी हमने फैक्टराइज कर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। सो ये इसका जो फैक्टराइज बनेगा, फैक्टर करेंगे x माइनस 6 x माइनस 2। अब देखिए डिनोमिनेटर जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? x शुड नॉट बी इक्वल टू 6 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। x जो है डिनोमिनेटर में अगर 6 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, पूरा डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा सिचुएशन। और इफ x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, इन दैट केस ऑल्सो it will be not defined because denominator should not be 0. Hence, the domain of a function is the set of relation except x should not be equal to 6 and x is not equal to 2. Here, hence, the domain of the function is the set of relation or real number. You can say real number. Sorry, it should be real number, not a relation. It is a real number. Set of real numbers except 6 और 2 नहीं होना चाहिए, और सभी को ये डिफाइन करेगा। अगर 6 और 2 हो जाएगा उस समय it will be not defined. So hence the domain of a function is the set of real numbers except x should not be equal to 6 and x is not equal to 2. Hence proved. Now proceed to the question number 4. Find the domain and the range of real function f defined by fx is equal to root x minus 1. अब जैसे ही रूट दे दिया तो हमारे को हम स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे को रियल दिया है, दैट विल बिकम एन इमेजिनरी पार्ट। सो जैसे मान लीजिए रूट -7 -8 -6 -3 -2 का दैट विल बी द इमेजिनरी नंबर, बट द रेंज इज और इज डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू इस। मीन्स जैसे ही रूट आ गया तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए पूरा सॉल्व करने पर। देखिए हमने लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। इट इंडिकेट दैट एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 हो सकता है और ग्रेटर हो सकता है, लेस देन नहीं होगा। लेस देन होते ही ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। इन दैट केस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। So the domain is 1 to infinity and range will be equal to, just to substitute 1 here, so x 1 minus 1 that is 0, so 0 to infinity. अब देखिए रेंज में कितना अंतर आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर 1 रखिए 1 minus 1 that is 0, in that case we will get to fx is equal to 0। और अब देखिए यहाँ पर ये क्लोज है, क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर ओपन इंटरवल रखा हुआ है। सो द डोमेन विल बी फ्रॉम 1 to infinity you can say, and range is from 0 to infinity। क्योंकि जैसे ही 1 रखोगे आप, ये 1 डोमेन का 1 जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ जाएगा। दैट इज वाई इट इज रेंज इज 0।
and if you keep on increasing the value of x, you will get corresponding value of fx. Now proceed to the question number 5. Find the domain and the range of the real function f defined by fx is equal to mod of x minus 1. अब जैसे ही मोड के अंदर कोई भी नंबर आ जाता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसकी वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर सेट ऑफ एक्स और एफ एक्स निकाला है। एक्स इज इक्वल टू दिया है मैंने वैल्यू, फॉर एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। इधर भी प्रोसीड कर सकते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड भी। y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू mod of x minus 1. So just if you substitute -3 here, so -3 minus 1, it will become -4, और मोड के अंदर है तो 4 आ जाएगा। अब चलिए -2 रख कर देखिए, -2 और -1 मिला करके क्या होगा, -3, और मोड के अंदर होने के कारण एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अब देखिए -1 -1 तो माइनस का 2 आएगा, मोड के अंदर माइनस के 2, और मोड की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 2। अभी -1, अब यहाँ पर 0 रखिए एक्स की जगह पर, तो -1, अगेन यू विल गेट 1। अगर 1 रखते हैं तो 1 - 1 0, 2 रखिए 1 3। सो इफ यू कीप ऑन substituting the value of x, you will get corresponding value of fx, and it will be like this. Now the domain means -infinity to infinity means the real number. You see the real function. Real function means real number. We have to, the domain is from the real number. So -infinity to infinity, that is the real number. Range is from 0, you see, जो y की वैल्यू, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की जो वैल्यू वर्कआउट कर रहे हैं हम, तो क्लोज्ड है। देखिए फ्रॉम 0 मीन्स इंक्लूडिंग 0 टू इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड में जाना है नंबर लाइन पर, दैट इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। Now proceed to the question number 6. Let f x comma x square upon 1 plus x square such that x belongs to real number be a function from real to real into real. Determine the range of function f. हमें डिटरमाइन करना है। देखिए अब ये x है तो ये क्या है, एफ एक्स है। x और y होता है, वहाँ पर ये y के जगह पर क्या लिखा हुआ है, तो हम समझेंगे ये x है, और ये y की जो वैल्यू है या एफ एक्स की वैल्यू होगी x² अपॉन 1 प्लस x²। अब देखिए यहाँ पर x² की कोई भी वैल्यू रखिए, माइनस और प्लस, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, प्लस। उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी x की वैल्यू अगर -7 रखते हैं, इधर भी -7 रखते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो 49 अपॉन 1 प्लस 49 आएगा, 1 प्लस 49 आएगा। अब चलते हैं यहाँ पर रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। x की वैल्यू देखिए, हमने x की वैल्यू क्या लिया है, -3 -2 -1 0। It is not obligatory that you take only these values, you can take at random. मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए ये वैल्यू सब सेलेक्ट किए हैं। यू कैन टेक एट योर ओन विल। इसी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इनको मैं ले करके वैल्यू x की वैल्यू ले करके हमने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y और एफ एक्स की वैल्यू वर्कआउट किया है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स दैट इज इक्वल टू x² अपॉन 1 प्लस x²। चलते हैं, चलो इसको वर्कआउट करते हैं ज़रा। -3 का स्क्वायर किया
और 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर किया, सॉल्व किया तो क्या आएगा 9/10। यहाँ पर देखिए 4/5, यहाँ पर देखिए 1/2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 4/5, 9/10, 16/17, 25/26। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि देखिए न्यूमरेटर क्या है 9 है, डिनोमिनेटर क्या है 10। इन ऑल केसेस यू विल गेट दैट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और यू कैन से द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब हम डिनोमिनेटर से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट मिलेगा दैट विल बी लेस देन 1। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर 4/5 है, आप 4 को डिवाइड कीजिए 5 से तो 0.8 आएगा, यहाँ पर 1 को 2 से डिवाइड कीजिए कि 0.5 आएगा। इन ऑल केसेस यू विल गेट लेस देन, बिकॉज देखिए 25/26, 16/17, 9/10। इन ऑल केसेस वी आर गेटिंग दैट quotient or the value of fx less than 1. So the range, we have to tell the range. The range is equal to non-negative real number, that is the 0. 0 is the closed interval here and 1 is the open interval. It will just reaching that point, but 0.9999999, but it will not have the value equal to 1. 1 के बराबर वैल्यू नहीं हो गई. It will be just approaching to 1. 1 से हमेशा लेस होगा, क्योंकि in all cases we are getting the value of fx, that is 9/10, 4/5, 1/2, 1/2, 4/5. In all cases, if you just select at random any value of x and substitute the value of x in fx, you will get the numerator less than denominator. So if you just divide it, you will get less than 1. So here the numerator, you see I have written here numerator upon denominator. This implies that the numerator is less than denominator, or y or fx is less than 1. Hence the range is including 0 to 1. 1 is the open interval, means it will be not having the value 1. It will be always less than 1. That's all.